Very good morning, student. This is Srikant and our class 10th economics chapter 2nd sector of Indian economy continue. Students, previous classes we have discussed about the how the tertiary sector becoming the one of the most important sector of Indian economy. And there we talked about the four reasons. Okay, हम लोगों ने चार जो है reasons को देखा था. Okay, basic service and increasing income of peoples. Okay, they demanding out eating, private school, private hospitals, and we also the technology, communication and IT sector. Okay, growing of IT and technology. And today we will discuss about the where are the most of the people employed. Students, very important. As you can see your NCERT book, आप देख सकते हो बेटा, उसको आप टिक करके पेज नंबर 27. Okay, where are the most people employed? And first of all, we understood through the graph. ग्राफ के माध्यम से पहले हम लोग उसको देखेंगे एंड व्हाट वाज द सिचुएशन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1972 टू 1973. 1972 टू 73 आपको आसानी से दिख रहा होगा यहाँ पे. ओके, थोड़ा सा छोटा है बट हाँ. शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, there are three sector: primary, secondary and the tertiary activities. Okay, and in 1972 to 1973 there are approximately the 74% of population engaged in the primary sector, especially in agriculture. कहाँ पर? एग्रीकल्चर में. Okay, and if we talk about the secondary and tertiary, okay, and there is a very little amounts of population engaged in primary and the secondary. Sorry, tertiary and the secondary. In secondary activities, total 11%. In the tertiary, 15%. If we, in contrast of 1970 to 73, we talk about the 2011 and 12. ग्राफ इज अ वेरी important. ग्राफ से आपका सारा माइंड क्लियर हो जाएगा. इन प्राइमरी सेक्टर, इन प्राइमरी टिल नाउ, मतलब आज भी अप्रॉक्सिमेट 50%, 49% पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर. एंड but here in 2000, in contrast of 1972 to 1973, okay, and there is a numbers of employment increase in secondary and the tertiary sectors. Okay, but little, it's a little. Okay, लेकिन जो है बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट, और भी ज़्यादा होना चाहिए. एंड दे कंट्रीब्यूट 75%. यानी कि ये तो बेटा जो सेक्टर है कंट्रीब्यूट 75%, दोनों मिलकर के जीडीपी में. ओके, इन जीडीपी कंट्रीब्यूट 75%, लेकिन जो है एम्प्लॉयमेंट कितना है? अप्रॉक्स 51% पीपल्स. मतलब हाफ ऑफ द पीपल्स इंगेज इन द टर्शियरी एंड सेकेंडरी, बट दे कंट्रीब्यूट 75%. बट प्राइमरी सेक्टर में क्या है? द 49% people engaged in a primary sector, but it's contribute only the 25% in GDP. अब सारा आई होप इट्स क्लियर. एक बार ग्राफ ही सारा जो है इस टॉपिक को क्लियर कर देगा. ठीक है. सो स्टूडेंट, द how we will write correct answer in examination. Okay, the employment pattern in India can be understood with the help of following points, following graph. इसको भी आप एग्जाम में लिखोगे, साइड में बना दोगे. परसेंटेज अगर याद नहीं है तो ये जो है वो थोड़ा सा उसको ग्राफ में ऊपर नीचे करके दिखा देंगे एंड एग्जामिनर कैन अंडरस्टूड इजीली. स्टूडेंट, द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन टुडे. इवन टुडे आप देख रहे हो 50% अप्रॉक्स द 49% पीपल्स आर एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर. ओके, अप्रॉक्सिमेटली the more than half of the workers in the country, more than half of the मतलब not only population, half of the workers are working in the primary sector, mainly especially in agriculture. सबसे ज़्यादा जो population है वो agriculture field में engaged है. Okay, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन निकल कर के आएगा why, क्यों ऐसा है? It is because the tertiary sector and the secondary sector
वी आर नॉट क्रिएटेड टू इनफ जॉब अपॉर्चुनिटी, बट लेकिन यहाँ जीडीपी में बेटा क्या है, कंट्रीब्यूट मैक्सिमम 75% मिलके कर रहे हैं, 50% वर्कर मिलकर के 75 में जीडीपी को जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट दे नॉट क्रिएटेड इनफ जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब यानी दोनों मिलकर के इनफ जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट नहीं कर रहे हैं. ओके, एंड द प्रोडक्शन इन द सेकेंडरी सेक्टर हैज इंक्रीज्ड 9 टाइम्स. ओके बेटा, 9 टाइम्स ओवर द ईयर, यानी कि साल भर में जो है 9 बार उसकी प्रोडक्शन बढ़ रहा है सेकेंडरी, लेकिन जॉब बट एम्प्लॉयमेंट, ओके, एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर रोज बाय द ओनली 3 टाइम्स. कितने समय बेटा? 3 टाइम्स जो है इंक्रीज हो रहा है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द टर्शियरी सेक्टर, and the production in the tertiary sector has increased more than 14 times. 14 बार 14 times बेटा इंक्रीज हो रहा है, but the employment has risen by the only 5 times. केवल कितना बार बढ़ रहा है? 5 बार. कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, कोई नो, देयर इज नो डाउट, they contribute maximum in the GDP, but they are create a very little job opportunity, okay, in this sector. And so we can say that हम लोग कह सकते हैं half of the population engaged in primary sector. ओके, यानी कि जो हमारा जो half of the population है, सारा जो बेटा ग्राफ से ही आंसर आ रहा है, मतलब कोई अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सारा इसी से आ रहा है. ग्राफ अगर हमारा तैयार है, सारा आंसर ओके है. half of the population engaged in primary sector दिख रहा है यहाँ पर, but contribute, अगर हम लोग जो बेटा जीडीपी की बात करें, ओके, जीडीपी, तो यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट 25%, यानी कि जो बेटा ये रिमेनिंग ये रिमेनिंग टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर है, कंट्रीब्यूट 75% जीडीपी. और वर्कर कितने हैं? हाफ ऑफ द वर्कर्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी. So student, this is all about of this lecture, and there is one more question, what is the main causes, and in agriculture sector half of the worker engaged, and but the only contribute the 25% in GDP, and where, okay, and where the 25% peoples, it's mean the 25% worker are, okay, burden, क्या है वो? बर्डन है एक तरह से. इफ वी रिमूव 25% पीपल्स नॉट इफेक्ट देयर प्रोडक्शन, यहाँ पर उनकी प्रोडक्शन कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सो स्टूडेंट्स, एंड देयर इज टू मोर टॉपिक अंडर एम्प्लॉयमेंट, एंड स्पेशली दिस इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज, यानी कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड स्पेशली वी फाउंड इन द रूरल एरियाज. आपको याद करिए, एंड ऑलरेडी भी डिस्कस्ड इन क्लास 8, क्लास 9. ओके बेटा, हम लोगों ने इसको जो है पीपल एज अ रिसोर्स में इसको हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है. व्हाट इज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेटा वो होता है इफ द पीपल्स, मतलब ऐसा हमें दिख रहा है कि वो मतलब एग्रीकल्चर प्लॉट में वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जो है मतलब 5 मेंबर्स मिलकर के 100 kg जो है वेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसमें से हम लोग उनको 3 पर्सन्स को रिमूव कर दें, ठीक है, तो भी जो है उनके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक है, एंड सो यानी कि जो 3 जो एसएस पर्सन है, एंड दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, वो क्या है, अगर उनको हम लोग हटा देते हैं तो फिर कोई इफेक्ट नहीं है. दिस इज कॉल्ड द डिस्गाइज. इट्स मीन, एंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर वी फाउंड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स, एंड देयर आर मेनी कॉजेस, मतलब बहुत सारे कारण इसके हैं. हम लोग उसी को आगे जो है हाउ टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटी फिर डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.